Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 13th July 2021 and I am teaching you chapter number 5. Name of the chapter is Animal Around Us. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, I explained you what are the things you will observe in the animals which are found in their surroundings. Their size is not same. Some are very big, some are small, some are very small. So size of the animal is not same, their color is not same. Is it clear? Some of them move on their 4 legs, they having one tail. Insects, they having 6 legs. And another thing which we discussed, that even their food eating habits, that is also differ. Some animals are found in the water also, that is aquatic animals. Some animals which are which can live on land also. Some animals which can live both in land and water, and these are the points we discussed in the previous video. So in this chapter, especially the part which I will study in this chapter is that what is the difference in animal according to their food habits. So how the animals are divided into 3 categories. Okay, when you observe the animals, so animals are divided into 3 categories, that is herbivorous animals, carnivorous animal and omnivorous animals. So in yesterday previous video I explained you about herbivorous animals, that is the animal which eat plants, fruits and vegetable, that are known as plant eating, or you can say herbivores animals. And examples I have also written that example on the board: cow, buffalo, goat, deer, horse, donkey. So these are the example of a zebra is also example of a herbivorous animal. Giraffe is also a example of a herbivorous animal. So these are the example of a herbivorous animal. Now today I will start with the carnivorous animals. So what are carnivorous animals? Student, the animals which eat the flesh of other animal, or you can say the animal which eat the meat of other animal. ठीक है, फ्लैश किसको बोलते हैं बेटा? जो मांस होता है. ठीक है, आप हम ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारा नॉन वेज खाते हैं ना, तो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को हम लोग खाते हैं. ठीक है, तो इन द सेम मैनर कार्निवोरस आर दोज एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. They only eat flesh, they don't eat any plants. So carnivorous are those animals which eat the flesh of other animals, and for that what they have to do, they have to kill the other animals. और दूसरे एनिमल का फ्लेश खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? तो ये जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, उनको जान से मार देते हैं. देन दे ईट देयर फ्लेश. So student, the flesh eating animals are known as carnivorous animals. So you can note down the definition. What are carnivorous animals? Animals that
animals that eat animals that animals that eat the flesh of other animals are called it flesh flesh eating are called it flesh eating animals, or you can say carnivores. And examples: lions, tigers, fox, leopard, etc. Okay, so animals that eat the flesh of other animals are called फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. जो मांस होता है ना, मांस का टुकड़ा, उसको फ्लैश बोलते हैं इंग्लिश में, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. सो एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लायन, टाइगर, फॉक्स, लेपर्ड, एक्स्ट्रा. So these are which type of animal? These are carnivorous animals, and these wild animals you will find in the jungle, or you can say you will find in the forest. ठीक है. ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं ये, क्योंकि ये डेंजरस एनिमल्स हैं. ये दूसरे को किल कर देते हैं, जान से मार देते हैं खाने के लिए. ठीक है. तो इन जानवरों से, तो ऐसे जानवर आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलेंगे बेटा. ठीक है. हाँ, अगर आप जू में घूमने जाते हो तो बहुत से जू में भी आपको ये एनिमल्स देखने के लिए मिल जाते हैं. दैट इज अ डिफर थिंग. लेकिन रियल में इनका अगर हैबिटेट बोला जाए, इनके रहने की प्लेस क्या है, तो वो है फॉरेस्ट है. इनकी रहने की जो प्लेसेस हैं, दैट इज द फॉरेस्ट. और इस टाइप के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. दीज आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स जंगली जानवर. Is it clear? So that is, this is the second category, that is carnivorous animals. Okay. Now the third which I will discuss with you, that is the omnivorous animals. So in this category, student, the animals that come, that eat plant also and that eat flesh also, both the things. मतलब plants से जो बनी चीजें ये उनको भी खा सकते हैं, और एनिमल्स को किल करके उनका फ्लैश भी खा सकते हैं. Is it clear? So such type of animals are known as omnivorous animals. So omnivorous animals, third is the omnivorous so animals that eat plants, as well as
as well as the flesh, as well as the flesh of other animals are called it omnivorous. So for example, you note down the example: crow, बियर, भालू को बोलते हैं बेटा बियर, ऑस्ट्रिच एंड क्रो, दे आर coming under the category birds. एक्स्ट्रा, ठीक है. सो एनिमल दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. ठीक है, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स ईट करते हैं एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. ओके, सो एंड इट्स एग्जांपल आर crow, bear, ostrich, etc. Even student, we are human beings. We are also come in this category. Human beings, when you are talking about the human beings are also omnivorous. ठीक है, human beings are also omnivorous. We also eat plant products and we also eat flesh of other animals also. So when we are talking about the human being student, so human beings also come in the same category, that is category omnivorous. They can eat plants also. We eat parts of a plant, fruit, vegetables, and we also eat flesh of different animals. That is the reason we also come in the category of the omnivorous. Is it clear? Now see student, another thing is that when I am, so according to eating habit of the animals, they are divided into three groups, that is herbivorous animals, carnivorous animals and omnivorous animals. देखो carnivorous animals जो है उनको दे किल अदर कार्निवोरस, जो भी सेकंड, चलो वन बाय वन फिर से रिवाइज करा देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले था आपका हर्बीवोरस एनिमल विच ईट प्लांट्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स. ओके, सो सी मैक्सिमम इफ यू सी इन द सराउंडिंग्स, अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो बहुत से ग्रीन प्लांट्स हैं. इज इट क्लियर? हमारी पूरे सराउंडिंग में बहुत से ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो हार्बीवोरस एनिमल्स दे गेट देयर फूड इजिली. ठीक है, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं दे गेट देयर फूड इजिली बिकॉज दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. ओके, they are plant eating animals and in the surrounding there are lot of trees, grass, so that they can eat. But when we are talking about the carnivorous animals, so for the carnivorous animal they don't eat plants, so they have to do very hard work. उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए. भाई कोई जानवर अपने से थोड़ी ना टाइगर के आगे आ जाएगा कि लो तुम्हें भी भूख लगी है मुझे खा लो. सबको अपनी जान प्यारी है ना बेटा. कोई हार्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, वो कार्निवोरस एनिमल से थोड़ी ना आके बोलेगा कि तुम फ्लैश खाते हो चलो मुझे खा लो. सो दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. उनको शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स हैं, सो दे किल अदर एनिमल्स. उन्हें शिकार करना पड़ता है दूसरे जानवरों का, तो इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है. इज इट क्लियर? सो
when we are talking about the carnivorous animals, so carnivorous animals are flesh eating animals. Okay, so that is the reason you say them carnivorous. And third is the omnivorous animal that eat plants as well as flesh. They can eat plant also, they can eat flesh also. Such animals come in the category of the omnivorous. And even human beings, we are also come in the category that is the omnivorous, that we also eat plants, fruit, vegetables, and we also eat the flesh of other animals. Okay, so how animal eats now, second. So what is, how the animals are divided into three group according to their eating habits, that I have explained to you. Okay, next topic which is given in your book is how animals eat. Next topic which is given in your book, that is how animals eat. So see student, as we know that we have teeth in our mouth, because with the help of the teeth we break the food into smaller pieces. इज इट क्लियर? टीथ क्या करते हैं, जो भी हम लोग माउथ में, क्योंकि हम लोग आवर ईटिंग ऑर्गन क्या है, हम जो भी खाते हैं माउथ से खाते हैं, ठीक है? सो आफ्टर दैट वंस द फूड इंटर इनसाइड द माउथ, then our teeth break that food into smaller pieces, and salivary glands are in our mouth. From this gland saliva is produced, which is mixed with the food, and this is mixed by the tongue. ठीक है, हमारे सब, हम सबके एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग सब में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, इसमें से सलाइवा निकलता है, ठीक है? ये सलाइवा फूड से मिक्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि फूड ईट करने के बाद हम उसे सोलो करते हैं, वो हमारे माउथ से फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है डाइजेशन के लिए, ठीक है? तो दैट इज द रीजन ऑल द एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ in their mouth, because teeth, it also depend upon the what, it also depend upon what type of food they are eating. ठीक है, जो लिखा है ना हाउ एनिमल ईट्स, तो हाउ एनिमल ईट्स में मेन हम ये डिस्कस करेंगे। अब थ्री कैटेगरी में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया हमने, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सो बेटा द सेट ऑफ टीथ्स which are present in our mouth, these teeth also depend upon what type of a food we are eating, ठीक है? कैसा फूड हम लोग ईट कर रहे हैं, सो ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन दैट, कि व्हाट टाइप ऑफ फूड वी आर ईटिंग। जैसा हम फूड ईट करते हैं वैसे ही टीथ हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है? दिस विल यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वन बाय वन आई विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल eating habits of the herbivorous animals and what type of teeth they have. Then I will discuss with you about the carnivorous animals, okay? And then next I will discuss about the omnivorous animals. So different animals, अब मैंने आपको क्या बोला, हम जैसा फूड खाते हैं such type of teeth are in our mouth. So different animals have different types of teeth, and what is the reason for this? Reason is that what type of food they are eating. Is it clear? This is very important point, कि different animals have different animals have different animals have different animals have different kinds of teeth, different kinds of teeth,
and already I told you the reason. The reason is that what type of the shape of the teeth depends upon what type of the food they are eating. Is it clear? The shape of the teeth, it depends upon what type of food they are eating. So this is very important. The shape of teeth, the shape of teeth depends on the shape of the teeth depends upon the food they eat. See, topic is how animal eat, because now there are three groups in which animals are divided: herbivorous, carnivorous, omnivorous. So different animals have different kinds of teeth. And what is the reason for that? एनिमल्स जितने भी बेटा थ्री ग्रुप के एनिमल्स हैं, इन सब के टीथ अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं. इनके टीथ डिफरेंट टाइप के इसलिए होते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है, इनके टीथ की शेप इस पे डिपेंड करती है कि ये किस टाइप का फूड ईट करते हैं. विच टाइप ऑफ द फूड दे आर ईटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन दैट. ओके, नाउ जैसे हार्बिवोरस एनिमल्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं. Herbivorous animals have flat and broad front teeth to bite off leaves and grass. ठीक है, इनके हर्बिवोरस एनिमल के आगे के जो दांत होते हैं ना, that are फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और ब्रॉड टीथ हैं. ठीक है, चौड़े हैं. ठीक है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, क्योंकि when they eat the leaves after that chewing the food, मतलब खाने को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके चबाते हैं ना. तो च्यू मतलब यही होता है, खाने को चबाना. उसको हम स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करते हैं, क्योंकि अभी आप हायर क्लास में जाओगे तो आप समझोगे कि ये क्यों बहुत ज़रूरी है. हम लोग माउथ में क्यों फूड को स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में अपने दांतों से क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि लास्ट में फूड, जानते हो बेटा, ब्लड में मिक्स हो जाता है. सारे न्यूट्रिएंट्स फूड के निकाल के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और ये ब्लड हमारे हार्ट से पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर होता है. इसी से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, सो इसलिए फूड को प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो हार्बिवोरस के जो टीथ हैं वो फ्लैट हैं, ब्रॉड हैं. इज इट क्लियर? एंड टू बाइट ऑफ लीफ एंड ग्रास. अब हार्बिवोरस एनिमल क्या खाते हैं? अब इनके टीथ कोई बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, फ्लैट और ब्रॉड हैं, चौड़े हैं. ठीक है, क्योंकि ये क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं. तो लीव्स ग्रास आपने टच करके भी देखी होगी, प्लांट्स की लीव क्या हार्ड होती है. इट इज़ लाइक ए स्टोन. स्टोन की तरह हार्ड है और मेटल की तरह हार्ड है? नो, वेरी इजली आप लीव्स लेते हो तो लीव्स को ब्रेक कर देते हो. तो लीव्स क्या है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत थिन है, बहुत थिन और सॉफ्ट है लीव्स. तो इनको ऐसे दांत तो चाहिए नहीं थे, क्योंकि ये ऐसे, ये क्या खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं. ठीक है, या वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, तो वेजिटेबल्स भी बहुत हार्ड तो होती नहीं है. फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स भी बहुत हार्ड तो होते नहीं हैं. तो दैट इज द रीजन इनके जो टीथ हैं वो फ्लैट और ब्रॉड हैं, एंड दे आर नॉट शार्प. अभी हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स की बात करेंगे, तब मैं उनके टीथ के बारे में आपको बताऊंगा, और तब आप कंपेयर करोगे तो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो हार्बिवोरस है फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ लीफ. बाइट मतलब काटना होता है. बाइट जैसे हम कहते हैं ना, एक बाइट खा ली, मतलब एक कट किया. ठीक है, एक कट करके एक टुकड़ा खा लिया. ठीक है, सो देयर स्ट्रॉन्ग बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फूड वेल. वो जो पीछे वाले दांत क्या है, ब्रॉड है, चौड़े हैं. ठीक है, सो देयर स्ट्रॉन्ग बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फूड वेल. च्यू मतलब होता है चबाना. जैसे आप भी खाना खाते होगे, आपने कभी मिरर में अपने टीथ देखोगे
इफ यू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपको जो अपने जो बैक वाले मोलर और प्रीमोलर जो टीथ हैं, ये हमारे ब्रॉड हैं, चौड़े हैं। ये टीथ कैसे हैं? चौड़े हैं, क्योंकि यहीं पे हम लोग खाने को क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसको और छोटा छोटा करते हैं। आगे के दांतों से काटने का काम होता है। ठीक है, देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे में 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, क्योंकि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं बेटा? ओमनीवोरस में आ रहे हैं। हम प्लांट्स भी खाते हैं, एट द सेम टाइम वी ईट द फ्लैश आल्सो। सो हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं: इंसिजर, केनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर आप देखोगे अपने माउथ को ओपन करके, आप मिरर में देखना, वो ब्रॉड लगते हैं, बड़े बड़े। और जो आपके आगे के दांत हैं, ये दांत शार्प हैं, लेकिन सबसे शार्प दांत हैं आपके केनाइन्स, जो साइड के हैं, ये 2 एट द अपर जा, 2 एट द लोअर जा। ठीक है, ये बहुत शार्प हैं। ये हमारा फ्लैश खाने में ये काम आते हैं, क्योंकि हम लोग ओमनीवोरस है ना, वी ईट फ्लैश आल्सो। तो दैट आवर कैनाइन्स आर द टीथ विच इज द शार्पेस्ट टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ के सबसे शार्पेस्ट दांत जो है आपके, वो कैनाइन्स हैं। ठीक है, सो with the help of this teeth we are able to eat the flesh। क्योंकि फ्लैश क्या होता है? हार्ड होता है। वो तो आप लोग कुक करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स फ्लैश को कुक करके खाते हैं। सो बाई कुकिंग इट बिकम सॉफ्ट। इसलिए फ्लैश को खाने के लिए बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए। फ्लैश है, जैसे एनिमल, किसी एनिमल को किल कर रहा है, अब उसके फ्लैश को खा रहा है, तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकत से उस फ्लैश को चीरना होगा। तो ये टेयरिंग वाले टीथ जो होते हैं, उन्हें केनाइन्स बोलते हैं, जो हमारे माउथ में है। ठीक है, दैट इज केनाइन्स। अब देखो फिर से आ जाते हैं हार्बीवोरस में। हार्बीवोरस एनिमल्स का मैंने बताया, फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं। ठीक है, एंड दे बाइट द लीव्स। ठीक है, बाइट मतलब काटना होता है। ठीक है, एंड ग्रास, दे ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड ईट द ग्रास। दे स्ट्रॉन्ग बैक टीथ। अब जो स्ट्रॉन्ग बैक टीथ हैं, हेल्प देम टू च्यू द फूड। च्यू द फूड का मीनिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा। च्यू द फूड मतलब होता है खाने को चबा चबा के खाना। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग, च्यू द फूड। सो हार्बीवोरस हैव, you can underline it in your book, herbivorous have flat and broad front teeth। ठीक है, इनके आगे के दांत फ्लैट होते हैं और बहुत चौड़े होते हैं। ठीक है, और पीछे के जो दांत इनके होते हैं, दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? उससे वो क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। ठीक है, तो आगे के दांत फ्लैट हैं और ब्रॉड हैं, चौड़े हैं। ठीक है, हार्बीवोरस है फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ। ये एक बात तो इनकी हार्बीवोरस की ये हो गई कि हार्बीवोरस है फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, they are strong back teeth, their strong back teeth help them to chew the food। Their strong back teeth help them to chew the food। And very good point is given in your did you know, please underline it। देखो बहुत बच्चों को ये बात ही नहीं पता होगी कि काउस डू नॉट हैव अपर फ्रंट टीथ। काउ के अपर, जैसे आपके अपर फ्रंट टीथ है ना, काउस के नहीं होते। ठीक है, देयर इज अ थिक पैड ऑफ स्किन इन प्लेस ऑफ टीथ। उनके अपर टीथ नहीं होते, लोअर वाले होते हैं, अपर नहीं होते हैं। थिक पैड ऑफ ए
देयर थिक पैड ऑफ स्किन है, जो अपर साइड है वहाँ सिर्फ स्किन है और उनके टीथ नहीं है काउ के. ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो.